Assalamu alaikum everyone. Welcome to this special live session. I'm Lubna Shaheen, training wali, an educator and a passionate learner of artificial intelligence. With over 10 years of teaching experience and 5 years in educational leadership, my mission is to inspire, educate, and empower through meaningful conversation and impactful learning. Wow. Today, I'm super excited to host a very special guest who will share his thoughts, insights, experiences, and wisdom with us. So, grab a notebook, stay with us, and let's dive into his inspiring journey together. Let me introduce my guest to you. Mr. Musa Ilyas is a dynamic personality who blends humor, business, and a passion for people. He's not only a comedian who spread joy, but also successful entrepreneur with a very vast experience in leadership, cosmetics, personal care, and food industries. Currently, he is serving as a CEO and founder of Samohi International. Musa has also held several top leadership roles in Pakistan business sector. So let's move towards him and listen what he is saying about himself and listen his journey by himself. Assalamu alaikum, Musa bhai. How are you? Walaikum assalam, Ms. Lubna. Peace be on to you and to all your viewers. Alhamdulillah, I am doing well. I hope things are well with you guys in Pakistan. I understand there was, due to the rainfalls, there was quite a काफ़ी परेशानी हो रही थी and I know कि वहाँ पे थोड़े मसले वगैरह चल रहे थे. So I'm happy to see कि Alhamdulillah you have light and you're functioning well. So that's good to see because I know people got quite disrupted over there. Exactly. Many of us are so worried about the current condition of Pakistan. So just pray for us Ameen. and all Pakistan. Uh, Allah will save us, inshallah. Okay. Inshallah, Allah will not save you. We will all save ourselves. Now we have Chat GPT in Inshallah. our hands. Inshallah, we will save ourselves. Ameen. And many of leaders will become together in future, inshallah, from Rehan AI school, and they will predict upcoming disasters in Pakistan before time, inshallah. So I mean, I think so. One of the this amazing thing that this Rehan AI Institute has brought to us is it is given all of us the power of knowledge. So what used to happen in the earlier days, the power of knowledge was limited to a very handful of people, and then they controlled the world. And वो हम सुनते भी थे ना, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते. तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि टुडे वी आर इन अ प्लेस वेयर फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड ऑन योर मोबाइल द एंटायर नॉलेज not the entire knowledge of civilization but the entirety of it is now accessible to all of us in our hand in our mobile kahin pe bhi so subhanallah I think very very exciting times. exactly, the whole universe is becoming in our now becoming in our palm now. Yeah. Okay, Musa bhai, first of all, introduce yourself. Who is uh, Musa? Gee, who is Allah? What a question. Allahu Akbar. uh, So, so Musa, my name is obviously based on because of being we are from a business background family, same community as Rehan Bhai, the founder of this Rehan Institute. Um, so that community is called Delhi Punjabi Saudagaran. They are the migrants who were trading between India and Pakistan pre-partition, and then the ones who migrated, and they were mostly into businesses, Delhi walas, and they're into the heavy foods and into generally into trading. So that was the family background. So I grew up in a family business. Was very blessed. Went to a very prestigious elite school in Karachi called the Karachi American School. So I got very good exposure, international exposure growing up while living in Pakistan. Having the best of both worlds. आपको the curriculum in the university in the school was the same as the American public schooling system, private school, public private combined schooling system. It was accredited from the US. So because of that, the education system was very good. And वो जो आज पूरे पाकिस्तान के पास पावर है जो नॉलेज आपके हाथ में है, पहले that was limited to the good schooling, the good system, because it was a very old traditional system. So in that way, I was very blessed. It was a little ahead of the curve at the time.
and वो family business ही करा. Pakistan has its challenges. One of the biggest challenges I believe it has is कि culturally हम शायद झूठ को इतना बुरा नहीं समझते. वो घर में भी, फैमिली में भी छोटी छोटी बातों पे भी बोल देते हैं. तो इस वजह से the deceptive nature which is so accepted culturally, I think so that reflects at work as well, because then professionally also people goli dene mein, dhoka dene mein, golibazi karne mein, so that created and naturally creates a lot of hurdles, which it did, and complications भी हुई. तो मगर अल्लाह का बहुत एहसान है, because पाकिस्तानी इतने जबरदस्त माशाल्लाह लोग हैं. There are, now especially the reason I'm very excited for Pakistan is because the control that a handful of people had, वो अब खत्म हो गया है. अब तो जैसे माशाल्लाह आप ही देख लें. I don't know what you do. I'm maybe you're a homemaker as well, while a teacher. Multiple hats पहने हुए. और आज with the power of knowledge and information, तो आप अपने आप को empower कर सकते हैं. So ये, और with the and with the internet and the connectivity available, learning has become so accessible that मुझे बस ये चीज़ देखिए, जैसे आपको एक्साइटमेंट हो रही है, आप तो माशाल्लाह हैं भी एजुकेशन वाली, मुझे भी बस इस चीज़ से बड़ी आजकल एक्साइटमेंट है. मैं तकरीबन 2-3 साल पहले बिकॉज ऑफ सम वर्क इश्यूज आई हैड रिटायर्ड, एंड वो पाकिस्तान में जैसे होते हैं मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो वो कुछ मसले चल रहे हैं, तो अल्लाह का एहसान है, आई वाज अवे फ्रॉम माय फैमिली, सो आई डिसाइडेड टू जस्ट कम हियर एंड बी इन दिस ब्यूटीफुल, अल्लाह ने एक और जन्नत बनाई हुई है. तो बस वहाँ पे अल्लाह का बहुत एहसान है कि वहाँ टाइम गुजार रहे हैं. अच्छा, ये बताइए कि what was your last degree? Like it was My masters last or bachelor's? degree, अरे कुछ भी नहीं. So I went to 2 universities, and after high school, unfortunately because of my father's health issues, and it was a business, joint family थी, तो ताया भी हमारे साथ business में थे, बल्कि वही थे असल founder. तो उन्होंने भी समझ लिया उल्लू बना दिया. उन्होंने बोला क्या पढ़ लिख के क्या करना है, काम धंधे पे लग जाओ. I was 21, so I quit university and I joined work. And So it was a this, mistake. It was a mistake. I believe डिग्री होती है, असली हो या जाली, बट डिग्री तो अच्छी चीज है, और लर्निंग भी अच्छी चीज है. तो I that is something I was unable to complete. पर अल्लाह का शुक्र, एक्सपीरियंस इतना हो गया कि PhD हो गया. So how can you rate out of 10 between degree and skills? So I think you know what a degree is. A degree is just a certification. जैसे आप when you do the Rehan School's teacher training course, they give you a certificate which basically verifies to another person that this person has completed this course. Therefore, ye skills we expect that it's a certification that the person is aware of these skills. So I believe in certifications like degrees. I think it is of value. मेरे ख्याल से होता क्या है, it's a good prerequisite to have. For example, if you see somebody जिसने 5th grade pass करी हुई है, जैसे आप पूछते हैं ना what grade are you in, what class are you in, so you assess their knowledge, how much, how you can communicate with them. The background से फर्क पड़ता है. So I do believe the degree adds value because it verifies that you have a skill set. Our problem is that the value of degrees has fallen because वो तो थोप के हिसाब से हर किसी को बांट देते हैं, and the people who come out वो बोलते हैं यार ये डिग्री वाला ऐसा है तो इसका तो डिग्री का कोई फायदा नहीं. This was the problem. So the credibility of the degree or the certificate was the issue, which again this Rehan AI Teachers Institute, every single participant I've met, on completion of it, there is a 100% guarantee that there will be an improvement in skill level, depending on what it is, depending on your own dedication, skill level improve हो जाता है. So इसीलिए मैं इससे बहुत fascinate हुआ हूँ, और मैं तो बल्कि अल्लाह ने चाहा तो आगे भी इसी से कुछ related कारोबार भी करेंगे. आमीन. डेफिनेटली आप मतलब इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. इनफैक्ट आई थिंक
a person can justify the degree by their behavior, by their professionalism. Otherwise, it's just a piece of paper. अगर आप खुद इसको justify नहीं कर सकते अपने काम से, तो फिर तो वो सिर्फ piece of paper ही रह जाता है. देखिए एक तो फायदा डिग्री का है, जैसे जब आप किसी से मिलते हैं, और हमारी कल्चर में खानदान का बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, तो वो खानदान का कॉन्सेप्ट भी वो डिग्री वाला ही है, बिकॉज इट काइंड ऑफ गिव्स यू एन ओवरव्यू कि ये बंदा अगर इस खानदान से आ रहा है, सो यू हैव समवॉट ऑफ एन आइडिया कि अच्छा इस तरह की तमीज़ होगी, इस तरह की तहजीब होगी, इस तरह की सोच होगी. यू गेट समवॉट ऑफ एन आइडिया कि वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. So a degree kind of does a similar thing when you जब पूछते ना अच्छा आप कहाँ से हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, तो you are calculating in your mind, trying to assess where the person, you're trying to place them in a. So that is all I believe that degree does. It gives you a shortcut कि इसके बजाय कि मैं आधा घंटा बैठ के ये समझूं कि भैया इसको मैथ इंग्लिश ये चीजें आती है या नहीं, वो इसने AI इंस्टीट्यूट से फलाना करा हुआ है, इसका मतलब फेसबुक चलाना आता है, रीस्ट्रीम करना आता है, ये छोटी मोटी सारी चीजें आती हैं, तो it's a easy shortcut. Which is why I think this Rehan AI Institute is this teachers training program is amazing. I really think this is going to fly. Allah ne chaha to. Inshallah, it will fly, and it is really amazing. It improves us a lot. Can you, if you don't mind, I know you're supposed to interview me, but I'm so curious. What your journey in this Rehan AI Institute, like before you took this course, how familiar and aware were you with this Restream and Facebook and Canva, and were you already aware? Because आप माशाल्लाह हैं, I don't know if आप पहले से training वाली थी, I'm assuming you were in education industry from the beginning. So how was that experience? I was familiar with Facebook, Instagram, YouTube, because I'm an entrepreneur as well. I started my own online business of jewelry and of jewelry and China से garments. Yes, sourced from China. तो मुझे इस वजह से फेसबुक, मेटा एआई एड्स और इन सब से रिलेटेड तो मैं थी, बट यस कैनवा से भी थी क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग ऑलरेडी करती थी. लेकिन मुझे इसको ना लाइक आई कैन नॉट रिलेट दीज थिंग्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स. मुझे उसको रिलेट करना नहीं आता. सही. बट नाउ आई कैन रिलेट, एंड व्हेन आई डिड कोडिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मुझे तो अपना फील आना शुरू हो गया जैसे आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई कैन मेक अ लॉट ऑफ एप्स. तो ये इसने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया. एंड रेहान अल्लाह वाला सर की एक बात, व्हेन ही सेड के पुट योर होल डिग्रीज इन अ बॉक्स एंड थ्रो इट असाइड, मतलब उन्होंने कहा था कि आपने 16 साल अगर तालीम हासिल की उसको साइड पे करते, अब आपने जो सीखना है ना वो उससे बिल्कुल अलग है. And it is definitely मतलब ये बिल्कुल ही. I understand. Even though I'm not in full, मैं तो डिग्री की बड़ी इज्जत करता हूँ, और मुझे पता है पाकिस्तान में रेहान भाई भी फ्रस्ट्रेट बेचारे. रेहान भाई का भी इशू क्या है, rightfully so, he's gotten so frustrated कि वो यही कहते हैं ना कि डिग्रियां लेके पूरे मुल्क भरा हुआ है, एंड अगर नॉलेज और स्किल देखो तो उनके पास है नहीं, एंड नौकरियां भी नहीं है. तो इस बात से बहुत वो राइटली सो वो फ्रस्ट्रेट हुए हुए. आई डोंट एग्री के द एंटायर सिस्टम इज ब्रोकन, बिकॉज आज जो हम फेसबुक और ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से एक भी चीज किसी जाहिल आदमी ने इन्वेंट नहीं की हुई, सब पढ़े लिखे डिग्री वालों ने ही बनाई है. तो ये तो लॉजिक नेचुरली है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग एंड नॉलेज, देयर इज नो वन हु कैन से कि इसका कोई फायदा नहीं है. फायदा तो इसी का है. हमें पाकिस्तानियों को, हमारे पास ये फायदा है कि अब हम इसको शॉर्टकट यूज करके थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करके वी कैन रियली इंप्रूव आवर लेवल. We don't have to master everything. 10,000 hours हर चीज में स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ घंटे लगा के बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं. सुभान अल्लाह. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, रीजन ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन इज आई थिंक कि यहाँ पे हमारे यहाँ डिग्री बेस्ड, जो नॉट ओनली डिग्री बेस्ड जो एजुकेशन है ना, जब हमें इंट्रोड्यूस होती है कोई नई चीज तो इट इज अ ट्रेंड बेस्ड. लाइक कुछ 7-8 इयर्स बैक पे एक आया था ट्रेंड कि एमबीए करना है, मतलब एमबीए का एक वो चला था ट्रेंड, तो हर बंदे ने एमबीए किया. लेकिन उसके बाद जो है वो हर बंदे को जॉब नहीं मिली, और उसके बाद किसी ने जो है वो छोटा मोटा कारोबार किया, किसी ने चिप्स का ठेला लगाया,
Even near to my house, a lot of fruit sellers are MBA. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एक और ट्रेंड आया। अब जैसे आ गया ना एक ट्रेंड, यहाँ पे हर कोई कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन उनके ना माइंड सेटल्ड नहीं है। लाइक वी नीड अ कैरियर काउंसलर, हमें कैरियर काउंसलर्स की बहुत जरूरत है, जो कि हमारे माइंड को पढ़ के हमें गाइडलाइन दे सके। और वो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी भी बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन कर देगा आने वाले वक्त में। Yes. तो ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि हम ट्रेंड के पीछे चल पड़ते हैं, कि लाइक ये अगर ट्रेंड एमबीए का चल रहा है तो चलो एमबीए कर लिए, वो कर लिए, बट स्किल्स एंड इसको साथ लेके नहीं चलते। बट मैं थोड़ा सा इस बात में मैं मानता हूँ कि देखिए, जब ट्रेंड आता है ना, तो एक जो पीपल हु गो सर्फिंग, वो बोलते हैं यू हैव टू राइड द वेव, कि जब एक वेव आ रही है, सो दैट इज द, जैसे अभी एआई का टाइम आया हुआ है, इवन इफ यू लुक एट रेहान भाई, he understands कि right now there is this fever everywhere regarding AI, this introduction. So ये जो उन्होंने AI इंस्टीट्यूट खोला, इसी चूंकि वक्त ऐसा था कि it caught on and it's catching on, and ये वक्त तो होता है, opportunities come, you do have to I think seize the opportunity. तो वो थोड़ा सा मैं इस बात में तो जरा हमेशा always there will be opportunities in whatever time you live in, but I think it's important to recognize कि अभी ये अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है। देखें, आप लोगों को भी, हम लोगों को भी वो यही सिखा रहे हैं ना, वायरल कर दो कोई चीज, ट्रेंड कर दो, एक समथिंग ट्रेंडिंग, इफ समथिंग जिसकी लोग बातें कर रहे हैं, जिसकी थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है, चलता तो वही है, यू नो, वर्ड ऑफ माउथ से या किसी भी चीज से। सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि अभी ये एआई का ट्रेंड चला हुआ है, और मुझे तो ये इसकी पूरी उम्मीद है कि जितने भी अभी तक ट्रेंड चले हैं, कभी वो बैचलर्स के, कभी कोर्सेज के, कभी किसी चीज के, कभी डकी भाई के, कभी यूट्यूबर के, मतलब हर चीज के वो एक थोड़ा सा आता है कि लगता है कि शॉर्टकट है, ये चीज करो तो 2 पैसे बन जाएंगे। मगर अब ये जो एआई का ट्रेंड है, ये अनलिमिटेड चीजें खोलेगा, एक्सपोनेंशियल इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो इसलिए मुझे इसमें बहुत एक्साइटमेंट है कि अब कल क्या है, किसने जाना, किसने देखा, मगर अब उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर किसी के पास, आपके पास भी वही सारी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है, या चाइना में किसी बंदे के पास है, या अफ्रीका में, या इंडिया में। So now we are somewhat on equal footing. So I really like that. I think things have, it's a bit more of a fair game now. ऐसे ही है। अच्छा मुझसे भाई ये बताएं कि हाउ यू मेट विद रेहान अल्लाहवाला, उनके साथ पहली मुलाकात कैसे हुई? पहली मुलाकात तो मुझे याद ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो रेहान भाई का मैंने, हाँ, आई एम सॉरी आई डिडंट गिव यू दैट इंट्रोडक्शन। रेहान भाई इज माय खालाज नवासा, यानी जी बिलोंग्स टू माय फैमिली। सो मैंने तो मतलब आंख खोली तो रेहान भाई को देखा हुआ है। तो हाँ, सो मैं तो उनको माशाल्लाह बचपन से ही जानता हूँ। ही इज यंगर देन मी, हिम एंड हिज यंगर ब्रदर इरफान. Both lovely. They used to spend a lot of time in our house because their mom and my mother were very close. So बहुत वो वक्त गुजारते थे उनके साथ, बड़ा मैंने you know, they used to come to the house and play. अच्छा, I was into computers and stuff. I did some courses in the American school, so I got introduced to computers at a very early age, and in the 80s. तो वहाँ पे रेहान भाई also saw the computers and he got excited, you know, he used it, and कितनी incredibly fascinating चीज है computers. तो वो फिर इन, आई थिंक इट वाज इन द 80s ओनली दैट रेहान भाई आल्सो गॉट इनटू कंप्यूटर्स। अच्छा, उनका तो एक रेहान भाई हैं, हम कंप्यूटर पे अपना खेलना खालना, यू नो, वो चीजें वगैरह जो करते थे वो करते थे। रेहान भाई ने कंप्यूटर लिया, मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर ही स्टार्टेड डूइंग कंप्यूटर बिजनेस. He was making games and selling games and repairing and patang kya bhi, मतलब रेहान भाई तो वो है ना, वो you take a toy, he opens it up and okay, let me see how this works. You know, he's got that really different kind of mind, which is amazing. I think that's what the innovators do. So this is how I've always known him. He was always really different. I think weird is a word you can use. My family mein everyone is a weirdo, so we are all different. You know, kind of going against the grain,
But Subhanallah, I find this as a gift personally. So, और देखिए अल्लाह का बड़ा एहसान है कि he's been lucky enough to have the opportunities to do a lot of things, and I find that very commendable. He is one of the few least selfish people that I know in my community. It's very uncommon. I think weird, curious, and skeptical minds. So these are the words from my side to him. Okay, what motivated you to voluntarily like attachment at Rehan online academy and schooling? भाई उनके so साथ I, तो था, लेकिन क्या चीज आपको मोटिवेट हाँ की कि नहीं, आपने तो इसको ये रेहान की मोहब्बत सिर्फ नहीं है जो मैं रेहान एकेडमी के साथ में आई अटैच्ड माई सेल्फ. It's more of the mohabbat of what he's doing. His vision is clear. I mean, I am not 100% on board with everything that he says, and I'm so happy because that means I am an individual. It's not copy paste. That's not what we're trying to do. But I really find it very admirable. तो वो चीज कर रहे हैं. मैंने अपनी जिंदगी में तो ये एक्सपीरियंस करा है कि पैसा कितना भी कमा लो इनफ नहीं होता, एंड सुकून और खुशी सिर्फ लोगों से मिलती है. तो वो जो एक हंगर है ना हमारे अंदर, देखिए ये जो in Rehan school they do a little more than just empower you by giving you these tools and to strengthen yourself. They also focus on osoji. They also focus on meditation. तो ये जो grounding techniques हैं, ये जो इंसानियत वाली चीजें हैं, this is what I am very fascinated by and love it, because these are things which we all practice in our daily lives in different forms. लोग इसको तरबियत यही कहते हैं. तो ये एक तरह से स्कूलिंग के अंदर कुछ तरबियत का हिस्सा भी ला रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरबियत है. Humbleness, my biggest issue with, I don't want to generalize and say Pakistan, but generally speaking in the South Asian subcontinent, arrogance is our biggest problem. We are very arrogant. हम अपने आप को, maybe because of the colonialism mentality, गोरा हमसे बेहतर है, हम बाबू साहब, that slave mentality, so this elitism, ये जो it exists everywhere in the world. I understand society, हमारे पास शायद कुछ ज्यादा है. तो ये जो है ना arrogance, झूठ, ये जो कुछ societal issues हैं जो अब बदल रहे हैं. Now the new generation, the new people, see, old days you were not allowed to speak. बड़ों के आगे आप जबान नहीं खोल सकते, आप कुछ जो कुरान के अंदर तो अल्लाह ने बोला है कि अपने खिलाफ, बाप के खिलाफ, अल्लाह के अलावा हर किसी के साथ you have to speak the truth. हमारे पास ये बिल्कुल भी नहीं है. फुप्पी, खाला, गलत, सही, झूठ, मक्कार, जो भी हो, आपको सर झुका के यानी बिल्कुल मुनाफिकों की तरह अपना जबान बंद रखनी है. तो वो मूसा अलैहिस्सलाम भी ऐसी जगह पैदा हुए थे कि जहाँ पे उनको तो बड़ी आसाइशें मिली थी, सब कुछ आराम था, मगर उनको कोई चीज थी जो तो वो it was I mean it's no comparison, but yeah, it was kind of a similar I feel there's a similar situation in Pakistan, and I feel रेहान जैसे बहुत सारे लोग हैं जो are not sitting there to complain but trying to make a change and make a difference, and everyone's doing it in their own way, and I think they're all right, all of them. Mother Rehan is not the incredible philanthropist working in Pakistan, but he's one of many, and I think Pakistan, subhanallah, what it produces is these amazing people जो बोलते हैं यार हम खुद कुछ बदलते हैं इस जगह के लिए, क्योंकि ये लोग तो कोई कुछ नहीं करने वाला, and that is the reality. I think रेहान साहब यही आपको एक करते हैं कि कोई कुछ नहीं करने वाला, और बाकी सब don't trust anyone. I have read word comedian on your profile, on the top of your Facebook profile. So is Musa a comedian as well? So I'll tell you the background of that. So I made Facebook whatever 2000 something when शुरू जब आया था.
एंड दैट्स व्हेन वो पूछ रहा था अबाउट योरसेल्फ ये वो वगैरह. अच्छा, मैं कारोबारी बंदा तो हूँ, मगर माय फैमिली फ्रेंड्स एवरीबडी विल टेल यू आई एम नॉट ए एक्सट्रीमली सीरियस पर्सन. आई एम केपेबल ऑफ बीइंग सीरियस. ऐसा नहीं है कि किसी की मैयत में जाके हंसना शुरू कर दूं, बट आई एम जनरली आई एम a little light-hearted. And this is all thanks to Subhanallah, my father's personality. He was a very, he's alive now, but वो age की वजह से personality भी बदल जाती है. But he was a very jolly, fun-loving, or entertaining kind of a person. So, and that's something which always creating fun and joy. Subhanallah, Subhanallah. So that's something I really picked up. I've obviously admired that, and I've really picked up from him on that. Or when I was making Facebook, so the karobari, the thing, the मैं वो सब तो मैंने तो अब people who know me all my life will tell you कि मूसा भाई हंसाते हैं और मजा आता है. एंड मुझे भी उसमें मजा आता है. हल्ला वल्ला ही हाड़ा हुड़ी रिलैक्स. लाइफ गोज ऑन. मुश्किलें तो बहुत हैं जिंदगी में, थोड़ा हंस के गुजारना चाहिए. तो बस वो मैं कोशिश करता हूँ. ऐसा तो नहीं कि तकलीफ नहीं होती, मगर हाँ, आई एम मोर, आई रियलाइज्ड that is probably what describes me. I am very much not, don't do it as a living, but yeah, I am somewhat of a comedian, which people find it a little difficult because वो comedianों से लोग serious काम expect नहीं करते ना. नहीं कर सकते. हाँ, expect that's why I'm asking. But वो आपकी पर्सनालिटी है ना कि आप उसको कैसे स्विच करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. वो स्विच नहीं, देखिए स्विच कुछ नहीं करना होता ना. जो काम तो हर चीज पेपर पे है. टास्क्स हैं. आप लोगों को यही तो ब्रिलियंस सिखा रहे हैं. इट्स ऑल टास्क. इट्स ऑल work is what? Task management. Life is task management. So it's assigning it to different people, monitoring, right? How regularly you monitor, look at the progress, reevaluate, edit, and then rethink for tomorrow. Every day is a new day. और आपका एक आज का टास्क है, list of things to do for the week है. हर चीज प्लानिंग ये सब करके लोग चांद पे पहुंचा हुआ है इंसान. अरे हमें छोड़ो, हमारे भाई इंडिया भी पहुंच गया. तो इसका मतलब है इंसान करने को तो सब कुछ कर सकता है. इट्स अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, और ये सब किसी के सर पे सीन नहीं है. और ना जब हमारे ही भाई भी पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है कैपेबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है. समथिंग इज स्टॉपिंग अस. दैट आई बिलीव इज जस्ट दिस. देखिए, द प्रोग्रेस इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, दीज कंट्रीज हैव मेड has been that they have focused on two things which I believe are very important. One is, of course, education, and the second is women empowerment. In both these places, they empowered their women, जो homemakers, जो next generations create करती हैं, and they focused on education, sciences. China, India, Bangladesh, not as much on sciences, more on textile and different kind of industries, but focus on those. हमारे पास बदकिस्मती से पढ़ाई का पर ना फोकस हुआ और ना हम सही, आई गेस करिकुलम भी, मैं तो नहीं कहता कि हमारा करिकुलम सही नहीं था. वही करिकुलम है जो दुनिया में चल रहा है, मगर कुछ हमारी अपनी कुछ गलतियों की वजह से शायद हम उसको सही संभाल नहीं पाए. बट द फ्यूचर रिमेन्स अनरिटन एंड थिंग्स आर चेंजिंग. सुभान अल्लाह. फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत चेंज आएगा पाकिस्तान में, और हम लोग लेकर आएंगे, हमारी जनरेशन लेकर आएगी इंशाल्लाह. आमीन आमीन आमीन. अच्छा मूसा भाई, ये बताएं कि इफ यू हैड नॉट डन योर बिजनेस, अगर आप बिजनेस ना करते तो आप अपनी चॉइस से क्या करते, मतलब कौन सा प्रोफेशन चूज करते? हाँ, तो मेरी वालदा तो चाहती थी कि मैं और ये आई रियलाइज नाउ कि मैंने शायद उनकी बात ना सुन के गलती करी. मेरी वालदा तो चाहती थी कि मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करूं और मैं अपनी कंप्यूटर कोई ऐसी चीज की पढ़ाई करके और कुछ कुछ मैं कंप्यूटर आईटी ये सारी चीजों का मुझे भी शौक है, इस तरह की कोई चीज कर लूं. तो मैं मैं आपको ये बताऊं, कुछ किस्मत ऐसी और हालात सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आप कारोबार नहीं है एंड बिजनेस नहीं है. तो जो आप कह रही हैं ना, अगर आप नहीं होते तो क्या करते, तो मेरी तो एक तरह से एक सेकंड लाइफ दोबारा आई है. एंड अब मुझे दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. राइट नाउ तो आई एम थोड़ा सा रिटायर्ड, कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि अभी भी इट्स नॉट टू लेट.
even today you can start something and do something. So अब जो भी मैंने अगर कुछ चाहता था, कर सकता था, नहीं किया, फॉर हजार इंसान की सिचुएशंस होती हैं, फैमिली बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बीवी बच्चे, शादी वगैरह, ये सब बहुत सारे मसले थे. अब अल्लाह का शुक्र है, नाउ दैट एवरीबॉडी इज सेटल्ड, so there's more freedom. So I can tell you one thing, people who get into their 50s, it's a second life. It's very exciting, because now you're done with your responsibilities and you're free once again to do whatever you want. So I'm excited to see what the future holds again. We will wait to see your next plan. Okay. हम मुझे भी इंतजार है. सही. अच्छा, why you have not put any kind of wala with your name yet, like? हाँ, तो ये तो रेहान भाई का कॉन्सेप्ट है. सो एक्चुअली दिस वाला थिंग is a very common thing in our community. It was used as an identifier. Generally हमारे पास, चूंकि दिल्ली वालों में स्पेशली लोगों को तोलते फौरन है ना, कि ऊपर से नीचे देख के कितने का है, क्या है, तो इसीलिए वो आसानी करने के लिए लोगों ने कि भाई इसको पहचानने के लिए इसका बिजनेस क्या करता है उसका लगा दो. तो कोई अल्लाह वाला तो इज अ फैमिली नेम, नथिंग टू डू विद देयर वर्क. मगर वो हमें भी, जैसे हम हैं इन माय कम्युनिटी, वी आर नोन एज दवाई वालास, बिकॉज हमारे दादा की वो पार्टनरशिप थी, इंडेंटिंग करते थे वो फार्मास्यूटिकल्स का, एंड देन हमारे ताया ने लेटर ऑन फार्मास्यूटिकल की एक सेटअप लगाया था इन द मिड 60s. सो बिकॉज ऑफ दैट वी वर नोन एज दवाई वालास. तो वो वाला शाला तो है लगा हुआ. मैं there is दवाई वाला इज द कम्युनिटी नेम. अगर किसी का इंतकाल होता है कम्युनिटी में तो वो आवाज लगती है मस्जिद में, तो उसमें वो जो ऐलान हजरात फरमाएं, तो वो मोहम्मद मूसा वल फलाने इन दवाई वालों का इंतकाल हो गया, इधर आके नमाज पढ़ लें. तो ऐसे वो आइडेंटिफाई करने के लिए वालाज लगाते हैं. मेरी आइडेंटिफिकेशन इज जस्ट मूसा भाई, तो इसीलिए मेरा कोई वाला नहीं लगा. और मेरा फैमिली नेम में भी रेहान भाई का एक्चुअली फैमिली नेम अल्लाह वाला है. And Allah Wala, in my community, there's a lot of people whose last name is Allah Wala who are unrelated to each other. हाँ, ये तो कोई अल्लाह का नाम है ना, खुली खेती है, कोई भी रख लो. बिल्कुल. अच्छा मूसा भाई, what challenges you have faced in cosmetics business, पाकिस्तान cosmetic products? तो कॉस्मेटिक बिजनेस क्या, किसी भी बिजनेस में मैंने जो सबसे बड़ा इशू चेंज करा है वो धोखाधड़ी और झूठ. एंड दैट goes from family, partners, customer, staff, everyone. This is so and it's not just, I think, झूठ and arrogance, कि जब आप झूठ पकड़ भी लो तो वो मैं आ जाती है. तो this was very difficult for me. So everyone has a different style of working. The way I work, it was just, I found it very challenging. लोग हैं जो कर सकते हैं. The people are made for different things. I was you need a dirtier person to deal well in Pakistan. I had dirty people to handle the dirtiness. I couldn't handle it myself, and I'm unable to do so, unfortunately. So my challenges were always but despite the challenges, 4 गंदे लोग तो 4,000 अच्छे लोग. Majority of the people are fantastic, dedicated, want to earn, want to learn, want to focus, want to be dedicated. There's that hand. See, हमारे पास, because of थोड़ा सा, again, the cultural thing, there is so much जागीरदारी, there is so much belief. हमारे पास authoritative system है. हम भी चाहते हैं कि जो बॉस है, अल्लाह आपका जो डायरेक्ट लाइन मैनेजर है, बस उसने जो कह दिया तो भाई ये कर लो. और सो आई डोंट वर्क लाइक दैट. काम, team work is it works in a collaborative way. So I've always worked like this. Allah का बहुत आसान है. I've always found success. My problems have always occurred with I would say customer or partners जिनको shortcuts और धोखाधड़ी का एक कॉन्सेप्ट है ना, कि भैया अपना फायदा, वो
मुझे लगता है कि नहीं यार, पैसा कम भी आ जाए कोई मसला नहीं है। वो अम्मी ने ये तो, आई एम एक्चुअली नॉट अ वेरी हंग्री पर्सन इवन दो आई एम वेरी ओवरवेट। आई वो थोड़े से भी इंसान खुश हो जाता है। सो आई बिल्कुल कंटेंटमेंट इज मोर, अल्लाह को जवाब देना है, किसी को तो देना है बिल्कुल। ना। वी डोंट बिलीव। अम्मी ने एक बात डरा दी थी, अम्मी ने बोला था कि ये याद रखो रिकॉर्डिंग हमेशा हो रही है। अभी तो हम लोग सिर्फ जब लाइव स्ट्रीम जाते हैं तभी फिक्र करते हैं। अम्मी कहती हैं लाइव स्ट्रीम मुसलसल हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, और एक दिन हर चीज का जवाब देना है। तो वो जो उन्होंने डराया था ना, वो डर बैठ गया। दैट वर्कड। सो ट्रू सो तो ट्रू। तो बस इफ यू बिलीव दैट देन यू वर्क डिफरेंटली। पीपल हु आर एबल टू लाई एंड डिसीव एंड जस्टिफाई, वो फिर वो तो उनको दे बिलीव ना कि माय शॉर्ट टर्म गेन इज वर्थ इट। To deceive and to lie, you have to be able to justify it 100 times to people. और अगर आपको छुपा के कोई चीज करनी है और नहीं कर सकते तो उसका मतलब है गलत है। तो एंड बिल्कुल तो वो बस मुझे ये है कि इन आवर कल्चर इवन टुडे हम अथॉरिटेटिव फिगर को, जो हमारा बॉस है, बड़ा है, बाप है, दादा है, कुछ है, उसकी गलत को गलत कहने की हिम्मत तक नहीं रखते मुनाफिक। बिल्कुल नॉट ऐसे के ही। नॉट के पर्दा, बुराई पे पर्दा रखो, मगर खराबी को तो बताओ भी ना, ताकि रेप्लिकेट ना हो कि कोई आदमी, इस आदमी को इतना परफेक्ट ना समझो, इसके अंदर ये भी कमजोरियां हैं, सो डोंट पूजो हिम। हम्म, वी गो टू मच इनटू पूजिंग और बैत ले लो और ये। I don't believe it. I हम्म, believe very American school system now believe in the individual, which is हम्म, very different from the tribe mentality. Pakistan is all tribe mentality, and which has its advantages, of course. To be a member of a tribe, there's a big security feeling in that. Magar then you also get kicked out of the tribe if you don't हम्म, adhere to them. तो ये मुझे, मैं बड़ा इंडिविजुअल किस्म का आदमी हूँ कि भैया जियो और जीने दो। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा मुसा भाई ये बताएं कि जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू फॉरेन, अभी आप लाइक यू आर सिटिंग इन टोरंटो, जी जी तो जी। मेरा मेरा व्हाट वाज योर जर्नी, अपनी जर्नी बताएं। इट हाउ डिफिकल्ट इट वाज, हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज। इंटरेस्टिंग तो काफी है, बिकॉज मेरा जर्नी शुरू हुआ था इन 1996 when I got married in Ottawa, which is the capital of Canada. हम यहाँ का इस्लामाबाद। So my wife's family at that time were living in Ottawa, and so I got married in Ottawa. My parents were not even there actually. In fact, all my friends and people came. वो इन लोगों को वीजा में डिले हो रहा था, तो अम्मी अब्बाजान ने बोला तुम ऐसा, यार अभी वैसे भी नवंबर का महीना है, सर्दी भी होगी, तुम ऐसा करो, तुम ले आओ, शादी करके ले आओ। So I got married in 1996 in Ottawa, and then brought her back to Pakistan. It was almost, I would say, 20 or 30 years later. 2007 is when I had 3 kids, and वो अच्छा क्या था कि because my wife was Canadian, kids were Canadian, I wasn't. So मुझे भी ये हुआ कि भाई अच्छा, पाकिस्तान के हालात भी 2007-8 में वो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस, डिफिकल्टीज भी हैं। जैसे आजकल चैलेंजिंग थोड़ा टाइम है पाकिस्तान का, उस तरह 2008 दुनिया में आया था, एक मुश्किलें आई थी। So, but I was very lucky. I had partnered with a friend of mine, and we had this amazing business called Taza Foods, जिसमें हम पराठा, शीरमाल, ताफ्तान, कुलचा, हलवा पूरी, ये जो देसी आइटम्स हैं, इनको फ्रीज करके एक्सपोर्ट करते थे नॉर्थ अमेरिका। उस जमाने में यूके वगैरह और जगह भी थी, बट मेन फोकस वाज नॉर्थ अमेरिका। So, and my friend was also moving in 2007. So we both actually moved together with our family. We lived in the same neighborhood. Kids went to the same school. We were in business together. Had such a fantastic time. 2007 to 2012. I was in Canada, did business. ये पराठों का काम, बहुत मजा आया, बहुत। It was so fantastic. हम तो यहाँ पे आके बोलते थे, इनिशियली जब हमने लैंड करा तो हम लोग हंसते थे, हालांकि we both of us had for experience, we did a lot of foreign travel, पर हम लोग कनाडा पहुंच के बोलते थे, अरे यार क्या जन्नत है, पासपोर्ट अपना पाकिस्तानी फाड़ के फेंक दो, यहीं रह जाओ।
We loved it. It was so amazing. So it's been an incredible journey. Canadians are so this is a line I've used many times कि ईमान नहीं मगर अमाल सब मुसलमानों वाले हैं. You know, early risers, you know, making sure your neighbor is not going to bed hungry, taking care of health, education, roti kapda makan is everyone's responsibility as a community. सच्चाई झूठ पे फरेब नहीं करो, सच बोलो, सिंपल खुश रहो, 2 रोटी से पेट भर जाता है. वेरी कंटेंट पीपल. मैं आपको बता रहा हूँ, जन्नती लोग. Amazing people. I find them absolutely very accepting, very really wonderful people. So it's been fantastic. The weather has its challenges. Every place has its challenges. So it is a freezer. You know, in winters can get down to -30 and whatnot. तो भाई जैसे अभी पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, खड़ा हुआ है, 10 चीजें हैं, तो आप हैं मसले, मगर अल्लाह का एहसान करते हैं सवाई. वो मुश्किलें तो जिंदगी में हर जगह होती हैं. सेम थिंग इन कनाडा. I find it very amazing. I mean, I'm really happy. But you know, home is where the heart is, and the heart is where the people are, and the people are in Pakistan and in Canada right now. Immediate families in Canada. So yes, the heart belongs to Canada right now. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के आपको सुनना, आपकी इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी सुनना. अच्छा, आपने फूड बिजनेस की बात की. मेरा तो मसला ये है कि अब लाइफ जर्नी में अब जिंदगी जितनी गुजरी है उतनी बची नहीं है, तो अब सुनाने के लिए किससे कम होंगे आगे. किससे बहुत ज्यादा होंगे आपके पास अभी वो वक्त कम है, तो किससे बहुत ज्यादा होंगे. अभी तो बहुत है. अभी तो वो है कि मैं यहाँ पे अगर हो जाऊं तो वो बहुत दुनिया वाले नाराज ना हो जाएं, तो मुझे तो बड़ी अपनी जबान पे काबू रख के बात करनी पड़ती है. फूड बिजनेस की आपने बात की, आई कैन रिलेट माई सेल्फ विद इट, क्योंकि हम खुद भी फूड बिजनेस कर चुके हैं. मी एंड माई हस्बैंड. बारबेक्यू स्पेशलिस्ट. अरे वाह, जबरदस्त. हाँ जी. But due to some issues in organization, I can understand that organizational issues जो कि जिसमें अलाउ नहीं किया उन्होंने हम लोगों को उसको आगे कंटिन्यू करना उस एरिया में, तो that's why we stopped it. But still मुझे अगर कोई ऐसा चांस मिला तो मैं फूड का बिजनेस जरूर. आप डिलीवरीज कर रही थी घर से बना के, एंड देन यानी स्कूल वूल या कोई इंस्टीट्यूशनल टाइप की वो कर रही थी, इसलिए कि वो यू नो दो ऑर्डर्स करने में तो पागल हो जाएगा आदमी. इंस्टीट्यूशनल इज अ लिटिल इजियर ना, कि भाई अच्छा 20 लोग का खाना, 12 लोग का खाना, इट बिकम्स अ लिटिल इजियर. वो एक दो ऑर्डर. हमने एक छोटा सा हट बनाया था, प्रॉपर एक हट लाइटनिंग के साथ, और उसको एक बड़ा बारबेक्यू का उसकी लुक बना के उसकी सारी डिजाइनिंग वगैरह भी खुद की. अरे आपने तो फुल फ्लेज कूद गए थे. मैं उसकी डिटेल आपको भेजूंगी, आप देखिएगा. वो उसके बाद उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है. उसके बाद हमने उसको होम डिलीवरी भी स्टार्ट की. दैट वाज फैंटास्टिक. बिफोर रमजान तो बहुत अच्छा था, बट उसके बाद फिर सम लाइक लॉज कुछ चेंज हुए, तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट डू दिस इन दिस एरिया. तो वो हमारा वहां पे एक नाम बन चुका था. फिर आहिस्ता वो उन्होंने हटा दिया गवर्नमेंट ने, तो वहां से हम लोग हट गए. ये बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत 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 देखता हूँ कि देखिए, एक चीज है, पाकिस्तानियों की तरह गवर्नमेंट भी है बहुत भूखी. और तो होता क्या है कि कोई इंसान जाता है, कोशिश करता है अपने 2 पैसे कमाने के लिए, तो फौरन ये लोग पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा हिस्सा दो, तुम तो मेरे मुल्क में कमा रहे हो ना. ये क्या बात. और इतनी मुश्किलात पैदा, तो ये बहुत. आई अंडरस्टैंड उनका भी चैलेंज ये है कि फक्कड़ फकीर, और वो कह लेंगे हम पैसे लाएं. अच्छा, और मसला क्या, हमारी कौम को मसला ये कि भैया हम जरूर तुम्हें दे दें हमारा हिस्सा, मगर तुम हमारा पैसा लेके, इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, इनएफिशिएंट ऑपरेशन आप कर रहे हैं, मगर अपना बोनस ले रहे हो, अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हो, अपने वो कर रहे हो. यहाँ पे लाख रुपए कमा नहीं सकता, वहां तुम्हारे लोग इस्लामाबाद में 2-2 लाख रुपए ऐसे बैठे. तो ये जो ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर करा हुआ है, और सिर्फ पाकिस्तान भी नहीं है, ये अमेरिका में भी है, ये दुनिया में हर जगह होता है, मगर इतना टाइटली जिस तरह वो उन पे गिरफ्त है लोगों का, चूंकि डंडे का जोर है ना. पाकिस्तान तो आया, हमारी फुप्पी, हमारी खाला, जिस तरह चखर नॉट ददियाल,
डंडे के जोर पे चलता है, मानते यही हैं. So that time is gone. और वो डंडा तो is उन्होंने कहा था ना वो पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में जो कहते हैं कि वो सफेद में इसीलिए डंडा घुसा के रखा हुआ है, माइनॉरिटीज का जो हाल किया हुआ है. So I think that is what it is कि वो डंडे के जोर की चीज है. और अब जगह ही खत्म हो गई है, तो आई थिंक नाउ सबको जरा अकल आ गई है कि भैया इस तरह तो. सो देखिए ये तो प्रूफ है ना कि बर्बाद कर दिया 78 years में. आपके पास तो एविडेंस है, प्रूफ है, किस मुंह से कोई कुछ कह सकते हैं नहीं नहीं हम ठीक है. एंड ये भी चीज फैक्चुअल है कि धोखा दिया, झूठ बोला, चाहे लोगों से, चाहे कस्टमर से, चाहे दूसरे पॉलिटिशियन से झूठ बोला. तो ये तो ऐसी लोगों के साथ ऐसे ठीक है अल्लाह का शुक्र है 2 पैसे कमाने के लिए तो दूध देने वाली गाय की तो लात खाते हैं. आई अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट रिस्पेक्ट इट. और झूठ मूठ ही ये वो मुझसे नहीं होता. 2 नंबरी 1 नंबरी है. पाकिस्तानी 2 नंबर मोस्टली बिलीव इट्स ओके. एंड मैं ये मानता हूँ कि 1 नंबर से कमाई की जा सकती है. हमने करी है ना, हमने, अल्लाह का शुक्र है. आई ओनली वर्क विद मल्टीनेशनल्स, completely changed the business outlook. We became an LTU, largest tax unit. तो ये सब वो चीजें हैं जो फैमिली में हमारे, they were very challenging. लोगों को समझ में नहीं आता, क्या पागल हो गए हो, कैसे दे सकते हैं इतना, यानी टैक्स की चोरी, not minimizing taxes but tax evasion, and these are the things I'm focused on. So I understand the challenges you have. It's very difficult, it's very discouraging, the environment. Totally agree. अच्छा मूसा भाई ये बताएं लास्ट में कि आपने स्टार्ट में एक जिक्र किया था कि मैं भी इसी से रिलेटेड अब कुछ करूंगा. आमीन. जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरीके से कुछ स्किल्स टाइप, तो कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दें ताकि हम क्यूरियस रहें कि कब आ रहा है आपकी तरफ से कुछ. कब तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. आई एम वर्किंग ऑन द curriculum. So basically what I want to do is what I've realized is Rehan Bhai is absolutely right in one thing, that this AI, introduction to AI technologies, and there is a certain skill set which in a short period of time gives remarkable results. And I've seen that people like yourself, in all the participants in Rehan school. Acha, Rehan Saab's objective is different. He's trying to, alleviate poverty, change people's lives, get them to make $1 million, get them in Guinness Book, whatnot. It's a very bold and a very vast vision. मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितनी जैसे रेहान भाई की सोच है मेरी. मैं तो 2 पैसे कमाने के हर जगह अपने तरीके सोच रहा हूँ. तो ये अच्छा, रेहान भाई इज डूइंग इट एज अ नॉन प्रॉफिट, which is great, मगर वो चीजें sustainable नहीं होती. So I am interested in some kind of an institute where we can simply just have, start off so I'm going to just play around and start off exactly how Rehan Bhai did. Have a small, maybe just one kind of program and just see what happens. Same thing, just introduce people to AI. Just introductory. See, like for people like you and for others, youth who are still familiar, there are so many people out there, including in my family and so many friends who I know, who are still not so familiar with ChatGPT. नहीं use करते भाई, बाकी सब छोड़ दें. And ये जो कॉल एनी और कॉल वैपी और कैनवा पे, इनसे जो आपको कुछ इतनी अब तो ये भी आसानी है कि आप तो ChatGPT को बोलो यार एक इस तरह की पोस्ट बना के दे दो किसी भी जबान में, और वो भी जनरेटिव AI. तो ये जो पावर लोगों के पास है ना, और डिपेंडेंसी, फलाना इलेक्ट्रिशियन आके आपको कोई गोली दे रहा है, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, अब उसकी बड़बड़ मानने की जरूरत नहीं है. उसको बोलो चुप करो, यहाँ ChatGPT में बोलो क्या बोल रहे हो, फिर उसे पूछो बताओ ये क्या सही है गलत है. यानी द नॉलेज का पावर अब आपके हाथ में आ गया है, तो गोलीबाजी मुश्किल हो गई है. बिकॉज ये चीज मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है इतनी पावरफुल चीज है तो हर किसी को सिखा सकते हैं, और उसके लिए पैसे भी ले सकते हैं थोड़े से. तो अब यही इरादा है, देखिए आगे क्या होता है, अल्लाह जानता है. अभी तो वो करिकुलम वगैरह मैं बना रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा hopefully by the end of the month. Let's see, no announcements yet. Best of luck.
Jazakallah, Jazakallah. Okay, your last message for this interview. अपना message कोई generation को देना चाहे, especially Pakistani generation. I would say this to all generations. You can absolutely succeed by not being deceptive and by being truthful. It's possible. Try to not make excuses and work hard, and use the AI tools to improve and better yourself. I think if you focus on the work, यानी जो बंदे से ज़्यादा काम की मेरे ख्याल से प्रायोरिटी होनी चाहिए, मगर बंदों के साथ भी हंस के काम निकालना, अपनी चीज करना, to remain calm. These are things which, for the young generation, they're all very emotional and वो तो सब आज ही फता करना चाहते हैं. So ठहराओ. But that's not, this is something all old people say to younger people. All of them say, ठीक है, आप तो मरने वाले हो, तो आप कह रहे हैं हमारे पास तो हमें तो जल्दी, हमें तो अभी करना है. तो वो, this is a cycle that continues. But I would just say कि keep at it. And अभी तो भाई there's a lot of excitement. दुनिया बदल गई है. अब ये बात में कोई शक नहीं कि दुनिया बदल गई है. 20 साल पहले जो था और 20 साल बाद जो होगा, उसमें जमीन, the next 20 years, if we don't blow ourselves up, are going to be transformative. I think there's going to be spectacular. You just have to go to China. You don't have to go anywhere. Go to China. They are years ahead of first world countries. They've done an incredible job with technology. And now with, solar power is coming. There are so many other things. So इतनी कारोबार, इतनी चीजें हैं, इतने धंधे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. And especially now ये भी पाकिस्तान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी अमेरिका चाइना से भी जरा नाराज है, इंडिया से भी जरा नाराज है, पाकिस्तान से बहुत कम नाराज है. और it's one of the fewer tariffs, one of the lower tariffs. I mean, tariff to Pakistan pe bhi hai, it's one of the lower ones. So again, I think great opportunity for people to do business. Business opportunities always remain, and I think कि वो हमेशा there will never be a time when you will not be able to make money. It's going to be challenging to find out how, and hope ChatGPT helps you find your way, as it will help all of us. Thank you so much, Musa bhai, for your time. पूछने के लिए और जानने के लिए बहुत कुछ है, but due to the lackness of time, I have to end this session. जी बिल्कुल. I also have to get to class. Okay. So thank you so much, everyone, for joining us today. A heartfelt thank you to you as well, Musa bhai, for sharing such valuable insight and inspiration. It was truly an enlightening conversation, and I'm sure our viewers gained a lot of from this journey and wisdom. So to all the viewers, I appreciate your time, comments, and support. If you found this session helpful, don't forget to like, share, and tag someone who needs to hear this. Stay connected and stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.